حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ اس ویڈیو کے اندر رینڈملی کچھ سوالات ہوں گے، 10+ ویڈیو ہے۔ اس میں جتنے بھی سوال ہیں سارے نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اپنا مسئلہ ڈائریکٹ سننا چاہیں تو ٹائمنگ پر کلک کر کے سن سکتے ہیں، وہاں سوال ٹائمنگ کے ساتھ جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر رینڈملی ای میل کے سوال جواب ہوں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ناپاک خون منہ سے تھوکنے کے بعد پاک کرنے کے لیے 3 بار کلی کرنا لازمی ہے یا اچھی طرح سے تھوکنا کافی ہے؟ یعنی اگر منہ کے اندر کسی بھی طریقے سے دانت وغیرہ یا جیب کٹنے کی وجہ سے خون نکل رہا ہے تو اس کو اچھی طرح تھوک لیا گیا۔ اب اگر خون نہیں نکل رہا تو تھوکنے سے یعنی بار بار تھوکنے سے بھی جو ہے وہ زبان پاک ہو جائے گی، اس کو پھر دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کلی کر لی گئی تو بھی کافی، یعنی دونوں کام کیے جا سکتے ہیں۔ تو اگر کلی کریں گے تو اس میں 3 بار ضروری نہیں ہے، 1 بار اچھے سے کلی کر لی جائے بہتر ہے، اور 3 بار کر لینا اس لیے بہتر ہے کہ اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ ہم منہ میں خون کے اثرات نہیں ہیں۔ لیکن اگر ایسی جگہ خون ہے کہ اسے تھوک دینے سے خون صاف ہو گیا اور نکل نہیں رہا اب، تو بھی منہ جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ ایک سوال یہ تھا کہ ہر سال کیا ایک ہی زیور پر بار بار زکوٰۃ دینی ہوگی جبکہ زیور میں کوئی اضافہ نہیں ہوا؟ تو زکوٰۃ جو ہے وہ اگر اگلے سال بھی زیور باقی ہیں عورت کے پاس اور اس کے پاس کوئی قرض نہیں ہے، کسی کا لین دین نہیں ہے، تو اگر وہ صاحب نصاب اگلے سال بھی ہے تو اس زیور کی زکوٰۃ جو ہے جویلری کی اگلے سال بھی دینی ہوگی، چاہے وہ جویلری پہننے کے لیے ہی استعمال ہوتی ہو یا اس نے پہنی ہوئی ہو سونے کی یا چاندی کی، تو ان پر زکوٰۃ جو ہے نا دینی ہوگی۔ باقی کتنے زیور پر کتنی زکوٰۃ ہے اس کے لیے کئی تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، آپ پلے لسٹ میں جا کے چیک کریں، وہاں پر زکوٰۃ کی پلے لسٹ ہوگی، روزہ رمضان زکوٰۃ، تو وہاں پہ وہ مسائل آپ کو زکوٰۃ کے مل جائیں گے۔ ایک سوال ان کا یہ ہے کہ وضو میں سر کا مسح 1/4 کرنا فرض ہے، 1/4 کتنا کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ یعنی سر کے کس حصے پر 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے؟ تو سر کے کسی بھی حصے پر 1/4 سر کا مسح کرنے سے فرض ادا ہو جائے گا، یعنی دائیں بائیں اوپر نیچے کہیں پر بھی اگر کوئی شخص گیلا ہاتھ پھیر لے، ایک ہاتھ بھی اگر کوئی شخص پورے سر پہ پھیر لے تو وہ 1/4 سر کا مسح ہو جائے گا۔ 1/4 سر سے مراد یہ ہے کہ جو نارملی آگے کے لوگ اس طرح کرتے ہیں تو ایسا لازم نہیں ہے کہ وہ یہی حصے پہ کرا جائے، اگر کوئی پیچھے کر لے یا پیچھے کی طرف بھی سر پہ مسح کر لے، پورے سر پہ 1/4 کہیں سے بھی گھما پھرا کے دائیں بائیں لیفٹ رائٹ اگر وہ کر لے گا تو اس کا مسح پورا ہو جائے گا۔ یہ لازم نہیں کہ دائیں بائیں کیا جائے۔ باقی جو طریقہ سنت ہے وہ یہی ہے کہ دونوں سائیڈوں سے پورے ہاتھ لے کر اور انگلیاں ملا کے بیچ سر سے لے کر پیچھے کی طرف جایا جائے، اور مسح کا ایک طریقے کی ویڈیو غالباً بنی ہوئی ہے، آپ اس میں اگر دیکھیں گے سر کے مسح سکندر وارسی اباؤٹ سر کا مسح یوٹیوب پہ ٹائپ کر کے تو وہاں پوری ویڈیو آپ کو مل جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آن لائن زیارت اگر خواتین کو کرائی جائے تو کیا یہ گناہ ہوگا؟ مزارات اولیاء کی اگر کوئی بلاگر جو ہے وہ لائیو ہے یا ویڈیو کے ذریعے عورت دیکھتی ہے تو اس میں کوئی گناہ حرج والی بات نہیں ہے۔ مزارات اولیاء پہ عورت کی حاضری موجودہ دور کے فتنے کی وجہ سے علماء نے منع کی ہے، البتہ بعض جگہ ایسا ہے کہ جہاں فتنے کا معاملہ یا غیر شرعی معاملہ نہیں ہوتا وہاں پر خواتین کے لیے الگ سے انتظام اہتمام ہوتے ہیں، مردوں کا وہاں آنا جانا بھی نہیں ہوتا، ناچ گانا ڈھول قوالی یہ سب بھی نہیں ہوتے، تو ایسی جگہ پر بعض خواتین جاتی ہیں۔ تو ابھی جو موجودہ دور میں اکثر مزارات اولیاء پر ہے وہ معاملہ لوگوں کے ذریعے خرافاتوں کا زیادہ ہے جس کی وجہ سے ممانعت ہے، لیکن اگر وہ صرف بلاگ کے ذریعے ویڈیو کے ذریعے زیارت کر رہی ہے، کہیں لائیو بلاگنگ ہو رہی ہے، کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو عورت جو ہے وہ مزارات اولیاء کی زیارت کر سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے کہ وہ مزارات اولیاء کی عورت زیارت نہیں کر سکتی۔ ایک سوال یہ ہے کہ میت کو غسل سے پہلے اس کے سامنے قرآن پاک پڑھنا کیسا؟ عرفان بھائی نے پوچھا ہے۔ یعنی میت کو جنازہ رکھا ہوتا ہے گھر میں، غسل میں بھی ٹائم ہوتا ہے تو لوگ اس کمرے کے اندر قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو منع کرتے ہیں پڑھنے کے لیے کہ مردہ جو ہے وہ ناپاک ہے، وہاں قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے شاید آپ نے سوال پوچھا ہے، کیونکہ لوگوں میں یہ چیز بہت مشہور ہے
کہ जिस घर में मैयत रखी हो जब तक उसे गुस्ल न दिया जाए वहाँ कुरान नहीं पढ़ा जा सकता। तो ये बिल्कुल गलत है। अगरचे मुर्दा गुस्ल उसका हुआ है या नहीं हुआ है, दोनों सूरतों में उस घर के अंदर कलाम पाक पढ़ा जाए तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है। लिहाजा अगर मैयत का गुस्ल नहीं हुआ और उससे पहले लोग वहाँ पे कोई सूरा पढ़ना चाहें, कुरान पाक पढ़ के इसाले सवाब करना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ख़राबी वाली बात नहीं है। अगर कोई पढ़ता है तो उसको रोका ना जाए। एक सवाल इनका ये है कि अगर किसी शख्स को सिर्फ 15 पारे कुरान पाक के हिफ्ज़ हों तो क्या उसको हाफिज़ कुरान कह सकते हैं? तो हाफिज़ कुरान अगर 15 पारे कोई शख्स जानता है उसको, यानी घर में फैमिली में पता होता है कि उसको 15 पारे हिफ्ज़ है और उसके बाद उसको हाफिज़ जी कहकर बुलाते हैं उसके घर वाले, तो उसमें तो हरज नहीं है कि उनके लिए धोखा भी नहीं है और वो जानते भी हैं कि 15 पारे उनको हिफ्ज़ है। लेकिन अगर कोई अननोन पर्सन है, उसको मालूम नहीं कि 15 पारे हिफ्ज़ है, अगर वो हाफिज़ कहता है तो उनको बताना चाहिए कि मुकम्मल हाफिज़ नहीं है। हमारे उर्फ में जो है वो मुकम्मल हाफिज़ को ही हाफिज़ कहा जाता है। बाकी जो इस रेस में होते हैं, कंटिन्यू चल रहे होते हैं और अभी मुकम्मल नहीं होता, तो उनको भी बाज़ लोग कह देते हैं इस हुस्न ज़न पे कि एक ना एक दिन इंशाल्लाह हाफिज़ बन जाएंगे। तो अगर ये 15 पारे हिफ्ज़ हैं और बाकी की अभी दौर चालू है, आगे करने का इरादा हो जाएगा, लोग कहते हैं, तो उनको बता दिया जाए कि दुआ करें कि मैं हाफिज़ बन जाऊँ। अगर वो कहते भी हैं आपको हाफिज़, तो आप कह दिया करें कि दुआ करें कि इंशाल्लाह मैं जल्दी हाफिज़ बन जाऊँ। लेकिन अगर सिलसिला तर्क कर दिया हिफ्ज़ का और आगे भी आप खुद से भी नहीं पढ़ रहे, कहीं किसी की सरपरस्ती में भी नहीं पढ़ रहे, तो फिर हाफिज़ कहलाने से बचना चाहिए। बाकी अगर कोई कहे तो आप बता दें कि मैं हाफिज़ मुकम्मल नहीं हूँ, 15 पारे मुझे हिफ्ज़ है, लेकिन कोशिश करेंगे तो बाकी के 30 भी इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे। एक सवाल ये है कि बैतुल खला में बिना सित्र खोले मुक़द्दस अल्फाज जैसे ज़बान से अगर निकल जाए टॉयलेट में, जैसे रोज़ा नमाज वगैरह, तो क्या ये कुफ्र है और क्या इससे रोज़ा टूट जाएगा या नहीं? बैतुल खला में सित्र खोले बग़ैर बोलने में कोई हर्ज या ख़राबी नहीं है। मेन ममानियत तो सित्र के खुलने की वजह से है। दूसरी है कि वो नजासत की जगह है तो ज़ाहिर है बैक्टीरिया वगैरह का मामला वहाँ ज़्यादा रहता है, तो इस एतबार से बोलना मना है कि ज़्यादा मुँह ना खोला जाए। लेकिन अगर कोई वहाँ पर बोल गया या बोलने की ज़रूरत पेश आ गई तो वो सित्र उसका ढका हुआ है तो इसी सूरत में बोल सकता है, ये कुफ्र भी नहीं है। अगर वहाँ पे किसी ने कोई ऐसा अल्फाज जहन में आ गया जो सही अल्फाजों से आपने लिखा है कि रोज़ा या नमाज इस तरीके से, तो कुफ्र तो बिल्कुल नहीं होगा। और रहा रोज़ा टूटने का, तो इससे रोज़ा टूटने ना टूटने का कोई मसला नहीं है। ये कोई चीज़ खाने पीने वाली नहीं है कि जिससे रोज़ा टूटता हो। सिर्फ जहन में आने से या टॉयलेट में ये चीज़ बोल देने से रोज़ा नहीं टूटता। और इसके लिए भी शायद सेपरेट एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करके देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगी। एक सवाल ये है कि हमारे यहाँ 13, 14, 18, 20 साल के बच्चे कहते हैं कि हमारी तहारत नहीं है कि अंडरवियर बदल के, और यानी 13, 14, 18 और 20 साल के बच्चे कहते हैं कि हमें तहारत लेने के इस्तिंजे की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ वो लोग अंडरवियर बदल के और इसी तरीके से प्राइवेट पार्ट पे पानी डालकर सिर्फ नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं। तो अगर इनमें से कोई बच्चे ख़ास तौर से 18 और 20 तो बालिग हैं, इनको तो तहारत लेने की ज़रूरत है। अगर इन पर गुस्ल फ़र्ज़ होता है तो इनको गुस्ल करना होगा, बग़ैर गुस्ल के नमाज़ पढ़ना हराम है। तो लिहाजा 18 और 20 साल वाले तो यकीनी तौर से गालिब बालिग हैं, और 14 साल 13 साल वालों का गालिब गुमान है कि बालिग हो गए हों। तो अगर ये बालिग हो गए हैं 13, 14 वाले, तब तो इनको भी जो है ना वो तहारत नजासत के बाद तहारत लेना और गुस्ल फ़र्ज़ होने के बाद गुस्ल करना ये ज़रूरी है। फ़कत ये कि हम पे तहारत ज़रूरी नहीं है, जहालत काम नहीं आएगी। तो नमाज के लिए वज़ू और नापाकी की हालत में गुस्ल, ये दोनों चीज़ें करनी होंगी। और अगर ये कि किसी ने बग़ैर इस्तिंजा किए पानी लिए बग़ैर इस्तिंजा कर लिया, सिर्फ यानी टॉयलेट कर लिया, उसने पानी नहीं लिया, आपका सवाल ये है क्या वो नापाक है, उन्हें पानी लेने की ज़रूरत है या नहीं? तो बालिग ज़ाहिर है कि इनको भी इस्तिंजा करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर किसी ने बिना इस्तिंजा के टॉयलेट कर लिया और उसके कपड़े पे बाद में कोई निशान नहीं है, तो नमाज से पहले अगर दोबारा या बाद में सित्र धोना चाहे तो सित्र धो के नमाज पढ़ सकता है, उसको नहाने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपका सवाल गुस्ल के ताल्लुक़ से ही था। तो उनको अगर किसी ने इस्तिंजा का पानी नहीं लिया तो उनको गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं, वो नापाक इससे नहीं होते। बाद में कपड़ा बदल ले, अगर पेशाब के निशान हैं
बूंदे हैं, कतरे हैं, अगर ये नहीं है जिस्म पे, कपड़े पे, तो फिर ऐसे ही वज़ू करके नमाज हो जाएगी। लेकिन बेहतर ये है कि इस्तिंजा बाद में कर लिया जाए, यानी नमाज से पहले, वज़ू से पहले। एक सवाल ये है ज़कात के ताल्लुक़ से कि कमाने वाले शख्स को ज़कात देना कैसा है। बाज़ लोग ऐसे लोगों को ज़कात देते हैं जो काम वगैरह कर रहे होते हैं। कमाने से मुराद ये है कि वो वर्किंग कंडीशन में होते हैं, चाहे उनका अपना बिज़नेस हो या कहीं उनकी जॉब हो, वो लोग काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों को ज़कात देते हैं। तो हमारे ज़कात देने का जो मेयार है वो इस शर्त पे नहीं है कि बंदा काम करता हो या ना करता हो, इस शर्त पे है कि वो साहिब निसाब नहीं होना चाहिए। बाज़ लोग के जो काम करते हैं लेकिन इतना कमाते हैं, अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं, और या साल भर में इतना नहीं जमा कर पाते किसी और मजबूरी या कर्ज़ की वजह से या किसी EMI की वजह से इतना जमा नहीं कर पाते कि उनके ऊपर ज़कात वाजिब हो, तो लिहाजा वो साहिब निसाब नहीं है, शरई फ़कीर है। तो अगर वो उनको कोई ख़ुद ज़कात दे दे तो उनकी ज़कात जो है ना अदा हो जाएगी। लेकिन अगर कंडीशन अच्छी है तो ऐसे शख्स को ज़कात मांगना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, और इसकी तफसील शायद हमने एक वीडियो में बता भी दी है कि बाज़ सूरतों में माल होते हुए भी किसी को ज़कात देना ज़रूरी है, जैसे किसी के घर में अचानक से शादी का मामला है या चोरी का मामला हो जाए शादी से पहले, या ऐसा कोई मसला हो जाए कि जहाँ उसकी इज़्ज़त की बात आए, तो ऐसे शख्स को भी ज़कात देना चाहिए कि जैसे शादी से पहले चोरी हो जाना या कुछ ऐसा मामला हो जाना, किसी के साथ ऐसी अनहोनी वाली बात हो जाए तो उसको ज़कात दी जा सकती है, अगरचे वो काम करता हो। ठीक वैसे अगर कोई शख्स है कि उसके ऊपर कर्ज़ ज़्यादा है, नॉर्मली वो जॉब करता है, कमाता है ठीक ठाक, लेकिन उसके ऊपर किसी और का कर्ज़ ज़्यादा है और वो कर्ज़ चुकाने में उसको काफ़ी साल लगेंगे, अगर ऐसे शख्स को ज़कात दे दी ताकि वो अपना कर्ज़ चुका ले या कुछ आसानी हो जाए उसके लिए, तो उसको भी ज़कात दी जा सकती है। तो ये शर्त कि वो बंदा काम करता है उसको ज़कात नहीं दी जा सकती, ये शर्त गलत है। देखा ये जाएगा कि काम करने के साथ वो साहिब निसाब है या नहीं। अगर साहिब निसाब नहीं है और उसके आगे मजबूरी है, कर्ज़ा है या कोई दूसरा मामला है, इस वजह से साहिब निसाब नहीं बन पाता वो अच्छा कमाने के बाद भी, तो ऐसों को ज़कात दी जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा शख्स है कि उसको कमाने के बावजूद उसके ऊपर इतना माल है कि उस पर ख़ुद पे ज़कात वाजिब है, तो फिर उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। लेकिन ये कि ऐसे शख्स को मुतालबा करना दुरुस्त नहीं है। अगर कोई ख़ुद देना चाहे भलाई की नीयत से कि भाई चलो कोई पड़ोसी है, रिश्तेदार है, कि उसके ऊपर किसी दूसरे शख्स का कर्ज़ है, उसने घर लिया और उसने कर्ज़ पे घर लिया है, किसी से कर्ज़ लेकर लिया और उस पर कर्ज़ ज़्यादा है, और अगर साहिब निसाब भी नहीं है, अगर उसकी मदद की जाएगी तो उसका कर्ज़ ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसे शख्स को भी ज़कात दे सकते हैं जो दिखने में ठीक ठाक भी हो और काम वगैरह भी करता हो, चाहे वो रिश्तेदारों में हो या आस पड़ोस में हो या किसी भी सूरत में। तो ज़कात का मकसद भी यही है कि उसकी जो है ना वो हेल्प बंदे की हो जाएगी। लेकिन अगर किसी शख्स में माल है तो उसको ज़कात फिर ना दी जाए, चाहे वो दिखने में आपको फ़कीर हो या वो ख़ुद अपने आप को फ़कीर ज़ाहिर करे। बाज़ फ़कीर ऐसे होते हैं कि जो अंदर से तो अमीर होते हैं लेकिन लोगों की दिखाने के लिए ज़ाहिर तौर से वो फ़कीर होते हैं कि उनके पास पैसा नहीं होता, हालांकि बैंक अकाउंट में उनके ठीक ठाक पैसा होता है, उनके पास इतना माल जमा हो चुका होता है कि उन पर ख़ुद पे ज़कात वाजिब होती है, लेकिन वो ये चीज़ बताते नहीं। तो ऐसे फ़कीरों को भी जो है वो ज़कात ना दी जाए। तावीज़ का काम करना कैसा है? तावीज़ का काम करना जायज़ है और इसके लिए सेपरेट वीडियो बनी हुई है। तावीज़ का पैसा लेना, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे सिकंदर वारसी अबाउट तावीज़ की इनकम, तो वो वीडियो निकल के आ जाएगी, उसमें पूरी तफसील है। तावीज़ का काम करना जायज़ है, जबकि काम भी अच्छी नीयत के साथ जायज़ ही किया जाए तब जायज़ है। ऐसा नहीं है कि तावीज़ कुफ्रिया शिरकी अल्फाज के हों, वो जायज़ नहीं है। दो लोगों में जुदाई गैर शरई कराने के एतबार से हो, वो जायज़ नहीं। किसी का हक नाहक तरीके से गसब करना या किसी जालिम को दिलवाने के फेवर में हो, इस तरीके के मामला चाहे वो तावीज़ की शक्ल में हो या दूसरी मदद की शक्ल में हो, जायज़ नहीं। बाकी अगर भलाई के लिए, फ़ायदे के लिए, नफ़े के लिए, शिफा के लिए कुरान पाक के तावीज़ या जायज़ अल्फाज के तावीज़ बना के दिए जाएँ तो इस काम करने में कोई ख़राबी नहीं है। खल्क़े खुदा की खिदमत की नीयत से करेगा तो इंशाअल्लाह सवाब भी पाएगा। सवाल इनका ये है, क्या एक ही मस्जिद में जुमे की 2 जमात हो सकती हैं? हो सकती हैं, जुमे की 2 जमात भी हो सकती हैं। एक मस्जिद के अंदर अगर मस्जिद इतनी बड़ी नहीं है या जुमे के दिन पब्लिक ज़्यादा है, तादाद ज़्यादा, और एक नमाज में सब नमाजी नहीं समा पाते मस्जिद के अंदर, फ्लोर सारे भर जाते हैं, तो ऐसी सूरत में जो रह जाए उनके लिए दूसरी जमात का एहतमाम किया जा सकता है। एक सवाल यह था कि रोज़े में अगर किसी नहाती हुई औरत पर नज़र पड़ जाए तो क्या रोज़ा टूट जाता है? सवाल
में रोज़ा किसका टूट जाएगा, नहाने वाली औरत का या देखने वाले या देखने वाली का, ये लिखा हुआ नहीं है। तो खातून का ही वैसे ये सवाल है। तो अगर सित्र तो औरत का औरत से भी पर्दा है, यानी खातून की नज़र भी नहाते हुए औरत पे पड़ जाए या जान के पड़े, जान के पड़ना तो दुरुस्त नहीं है, लेकिन धोखे से पड़ जाए तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है। बाकी मर्द हो या औरत, रोज़ा इसमें किसी का नहीं टूटेगा, ना नहाने वाली का और ना ही उस पर नज़र जिसकी पड़ी उसका। रोज़े से इस पर कोई ख़राबी नहीं आएगी। बल्कि बाज़ लोग इसके ताल्लुक़ से वज़ू का ज़्यादा पूछते हैं कि सित्र देखने से वज़ू टूटेगा नहीं, तो ऐसे में वज़ू भी नहीं टूटेगा। तो अगर धोखे से नज़र पड़ जाए तो वज़ू या रोज़े पे कोई ख़राबी नहीं आएगी। अब अपनी क़ज़ा उम्री नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान। विजिट करें qazacalculator.smswarsi.com पर और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम क़ज़ा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।